DNA is made up of nucleotide. What is nucleotides? Nucleotide chain nucleotide contain three components: sugar, base, and phosphate. Okay. In nucleoside, phosphate is absent. That is called nucleoside. If there is a nucleotide of adenine, that is called adenylate acid. Nucleoside of guanine, that is called guanylate acid. Thymidylate acid, as similarly. So how nucleotide is formed? That is sugar which pentose sugar, base, and phosphate. Pentose sugar, that is in DNA, that is deoxyribose, C5H10O4. In second position, one O is absent. That's why it is called deoxyribose. Structure like this. Okay. This is called deoxyribose. In second position, one O is absent. In ribose sugar, there is a O is present. In fifth carbon, there is attachment of phosphate. Okay, that is called deoxyribose. Base, there is two bases, purine and pyrimidine. Purine contain adenine and guanine. Pyrimidine contain cytosine and thymine, and that is phosphate, phosphoric acid, H3PO4. Okay, that is phosphoric acid. So that is called nucleotide, and nucleoside, phosphate is absent in nucleoside. That is called adenine nucleoside. That is called adenosine, guanosine, thymidine, and as. That is nucleotide and nucleoside. Now we discuss the different types of bonds present in our DNA. So when you see the structure of DNA, it will look like this. Double helical model of DNA, Watson of Crick, by using X-ray diffraction crystallography method. This is double helical model of DNA given by Watson and Crick. So that is anti-parallel direction, 5' to 3' and 3' to 5' anti-parallelly. One is run in this direction, one is run in this direction. So in DNA there is a bases. A always pair with T and G always pair with C. A and T between nitrogenous bases there is a hydrogen bond, double hydrogen bond, and there is a triple hydrogen bond. This is backbone of DNA, which is made up of sugar and phosphate. Okay. Sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, sugar, phosphate, sugar, phosphate. Like this. So that is diameter of DNA 20 angstrom. If nanometer, 2.0 nanometer. Angstrom means 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 9, that is nanometer. Okay. And that is pitch of the helix, that is 34 angstrom. And distance between the bases 3.4 angstrom, and nanometer 0.34 nanometer. Very important, one question should be there for the NEET examination. So that is a diameter, pitch of the helix, and distance between the bases. Very important. And now we discuss different types of bonds present in our DNA. So this is sugar, this is base, and this one is phosphate. So between sugar and base there is a glycosidic bond. Between sugar and phosphate, phosphodiester bond. And between base and base there is a hydrogen bond. So three bonds is there, very important. Students, glycosidic bond between sugar and base, phosphodiester bond, sugar and phosphate, that is backbone of DNA. And between base to base, hydrogen bond. Okay. So DNA is genetic material. Why? RNA is not genetic material. DNA is genetic material because DNA mutation is very slow. DNA is more stable and less reactive, but RNA is less reactive, less stable and more reactive. Just opposite. That's why DNA is called our genetic material. Why it happened? RNA is less stable because there is a presence of hydroxyl group in second position, and the presence of also uracil in the instead of thymine make the DNA less stable. And ribozyme activity also present, that is catalytic RNA,
That's why RNA is more reactive. Okay, RNA heavy catalytic activity, that is called ribozyme. That is very important. Next we discuss DNA as a genetic material. Who proved? Their scientist. Transformation principle. Who given? Griffith. स्ट्रेप्टोकासन निमोनिया पे वर्क किया था और 2 स्ट्रेन लिया था, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन. जो स्मूथ स्ट्रेन था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ they are layering, they are virulent and causing disease, injected into the mice. And rough strain, that is non virulent. Then heat killed rough and smooth को mix किया, then injected into the mice. mice की क्या हो गया? mice मर गया. क्यों? क्योंकि जो रफ जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन था उसमें कुछ फैक्टर ऐसे थे जिसने रफ स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, बट वो ये नहीं बता पाए कि वो ऐसी क्या चीज थी. बाद में जो साइंटिस्ट थे उसको केमिकली प्रूव किया था एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने. तो उन्होंने एंजाइम्स का यूज करके आरएनएस, डीएनएस एंड प्रोटीएस, आरएनए से आरएनए को डिग्रेड कराया, प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. डीएनए को प्रोटीएस को प्रोटीन को प्रोटीएस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट डीएनए जब उन्होंने डिग्रेड कराया तो प्रोसेस में इफेक्ट पड़ा. तो उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई चीज दूसरे पर चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है हर्से चेज एक्सपेरिमेंट, जो बैक्टीरियोफाज पे किया गया था. किस पे किया गया था बेटा? बैक्टीरियोफाज, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट. बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट. बैक्टीरियोफाज. ओके, तो बैक्टीरिया जो फाज होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं. वो इंजेक्ट, उसमें जो कवरिंग है ऐसे स्ट्रक्चर रहता है ना. हेक्सागोनल हेड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये उसका शीथ है, ये टेल फाइबर्स हैं. सो इसको जो ये प्रोटीन कवरिंग है हेड की, तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको फास्फोरस 32 से लेबल कराया, रेडियो लेबल, और जो हेड है उसको सल्फर 35 से. ये क्वेश्चन भी आता है, फास्फोरस 32 सल्फर 35, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो लेबल. फिर उन्होंने जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया, नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि केवल फास्फोरस 32 नेक्स्ट जनरेशन में मिल रहा है, सल्फर 35 नहीं मिल रहा है. इस हिसाब से उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, प्रोटीन नहीं जाता. नाउ वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिप्लिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि एक ही तरह के सिमिलरली तीनों प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन. तो बच्चों को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. तो क्लियरली समझेंगे, केवल एंजाइम्स का वर्क याद रखना है, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी. रिप्लिकेशन का मतलब बेटा डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू डीएनए, डीएनए की डबलिंग होना. तो डीएनए की डबलिंग रिप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है, सेल साइकिल के. किस फेज में होता है? सेल साइकिल के एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है. तो रिप्लिकेशन में डीएनए का डबल होना, इसमें क्या होगा वो हम देखते हैं. 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन. तो तीनों स्टेप तीनों में कॉमन रहेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन. इनिशिएशन मतलब प्रोसेस का स्टार्ट होना, इलॉन्गेशन मतलब चैन में न्यूक्लियोटाइड बेसेस जुड़ते जाना, चैन का लंबा हो जाना, और टर्मिनेशन मतलब जब पूरी चैन बन जाएगी तो प्रोसेस रुक जाएगी, उसको कहेंगे टर्मिनेशन, मतलब स्टॉप हो जाना. तो जैसे बेटा मान लो कि डीएनए है हमारा, डीएनए हमारा कैसा है? डीएनए हमारा हेलिकल फॉर्म में है ना, हेलिकल फॉर्म में है. तो पहले ये ओपन होगा, क्या होगा? ओपन होगा. डीएनए की जो कॉइलिंग है वो रिमूव होगी. तो कॉइलिंग कौन रिमूव करेगा? टोपो आइसोमरेज. कौन रिमूव करेगा? टोपो आइसोमरेज, आल्सो कॉल्ड गाइरेज, वेरी इंपॉर्टेंट. वो डीएनए की कॉइलिंग को रिमूव कर देगा. डीएनए हमारा कैसा हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा. रिलैक्स हो गया बेटा. अब डीएनए जब रिलैक्स हो गया तो अभी इसमें कोई भी एंजाइम आके बाइंड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी डीएनए में बॉन्ड्स हैं और ये ओपन नहीं है. तो कौन आएगा बेटा? ये डीएनए को ओपन करने के लिए हेलिकेज आएगा. क्या आएगा? हेलिकेज. हेलिकेज क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा और हमारा डीएनए ओपन हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? डीएनए ओपन हो जाएगा, है ना. 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओपन हो गया. तो जब डीएनए हमारा ओपन हो गया तो बेटा बात समझना, ये दोनों कैसे स्ट्रैंड है? टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब ओल्ड स्ट्रैंड. कैसे स्ट्रैंड? ओल्ड स्ट्रैंड.
क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस डीएनए रिप्लिकेशन किसने प्रूव किया था? जो मिशेल्सन और स्टाहल थे उन्होंने प्रूव किया था, नाइट्रोजन के लाइट और हैवी आइसोटोप्स लेके N40 N50। ओके, तो डीएनए रिप्लिकेशन हमारा सेमी कंजर्वेटिव, एक टेम्पलेट स्टैंड होगा जो ओल्ड कहलाएगा, एक टारगेट जो नया बनेगा उसको टारगेट कहते हैं, तो वो क्या होगा? न्यू स्टैंड। तो एक ओल्ड एक न्यू, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर बेटा? अब जैसे ही हमारा डीएनए ओपन हो गया तो कौन आएगा बेटा? प्राइमर आएगा। कौन आएगा? प्राइमर। तो बेटा प्राइमर क्या है? डीएनए आरएनए के 10 to 18 बेस पेयर्स के छोटे सीक्वेंस होते हैं जो प्राइमर कहलाते हैं। प्राइमेज एंजाइम इन प्राइमर को बनाता है। अब ये प्राइमर जो है डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के साथ टी बाइंड करेगा, जी के साथ सी बाइंड करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अब डीएनए के बिना प्राइमर के इनिशिएशन नहीं होगा, ठीक है। प्राइमर किस पोजीशन पर? 3 पोजीशन पर आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। अब इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद बेटा क्या होगा? इलॉन्गेशन। क्या होगा? इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है कौन सा? कौन सा बेटा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए मतलब एक डीएनए के बनने के लिए दूसरे डीएनए स्टैंड चाहिए, इसलिए उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। तो आल्सो कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। कोरेनबर्ग ने इसको, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। डीएनए पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है जिसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। मतलब जो इनकरेक्ट बेसेस है अगर वो जुड़ गए हैं तो वो उसको रिमूव कर देगा। हैविंग 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, है ना, इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। और 5' to 3' क्या है? पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमराइजेशन क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ द डीएनए चेन बाय 5' to 3' डायरेक्शन। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम इलॉन्गेशन करेगा बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड बेसिस, नए बेसिस को ऐड करता जाएगा और दोनों स्टैंड को इलॉन्गेट करेगा, ठीक है। इलॉन्गेशन हो गया तो ये डीएनए का बहुत जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी प्रोसेसिविटी और एक्यूरेसी। 1000 बेस पेयर पर ज्वाइनिंग ये जोड़ देता है, ये इसकी प्रोसेसिविटी है, हाई रेट ऑफ प्रोसेसिविटी। और एक्यूरेसी मतलब हर बिलियंस ऑफ बेसिस में वो हरदम करेक्ट बेसिस ही जोड़ता है। कभी अगर इधर हो गया तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के थ्रू वो गलत बेस को निकाल देता है। तो ये तो डीएनए पॉलीमरेज। अब जैसे ही इलॉन्गेशन हो गया चेन का, है ना, चेन का इलॉन्गेशन हो गया, कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। दोनों स्टैंड का करेगा, पहले इधर फिर इधर। कर दिया बेटा? जैसे ही इलॉन्गेशन कर दिया, इलॉन्गेशन होने के बाद बेटा क्या होगा? ये ऐसे बना, है ना, ये चेन हमारी इधर गई, ये चेन इधर गई। ये जो होता है ये क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन फार्क। जब दोनों स्टैंड खुलते हैं तो एक फार्क बनता है, उसको कहते हैं रिप्लिकेशन फार्क। वहीं पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है? वो साइट है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो बेटा ये दो स्टैंड बन गए। एक जो स्टैंड होगा उसको कहेंगे लीडिंग स्टैंड, ये वाला, और एक जो होगा वो लैगिंग होगा। बेटा क्या होगा? लैगिंग होगा। जो लैगिंग होगा वो अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फार्क, रिप्लिकेशन फार्क से दूर की तरफ जाएगा, और लीडिंग होगा टुवर्ड द रिप्लिकेशन फार्क, रिप्लिकेशन फार्क की तरफ आएगा। क्लियर है? अब जो लैगिंग स्टैंड है बेटा उसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस स्टैंड में होते हैं? तो बताएंगे लैगिंग स्टैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लैगिंग स्टैंड में। ये क्या है? 1000 से 2000 बेस पेयर्स के डीएनए की छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब ये फ्रेगमेंट को जोड़ेगा कौन? लाइगेज। कौन? जो मोलेकुलर ग्लू है, लाइगेज आके इनको जोड़ देगा, जोड़ेगा, पूरा स्टैंड सीधा कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारा पूरा डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, दोनों स्टैंड बन गए, एक ये और एक ये। ठीक है बेटा, ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई। तो एंजाइम आपको याद रखने हैं, एंजाइम से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गाइलेज हो गया, हेलिगेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जो है लैगिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब जैसे डीएनए रिप्लिकेशन बेटा हो गया, अब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में बेटा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। क्या होगा? एमआरएनए। जब एमआरएनए से डीएनए बनने लगता है तो उसको बेटा क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।